Hello friends, welcome back to my channel. So today in this chapter we will study about the plant kingdom. Okay, previously we have studied about that living world and the biological classification. Now the third one we are having is the as per the NCL the third chapter is the plant kingdom, right? In this we will study about the plants, how does the plant has been classified into various categories like algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm in the detail each and everything, their life cycle, life process, how they germinate and how they grows up, etc. Everything. How does the classification has been done in the case of plants, not in general. Like in the previous video or chapter, we have studied the five system of the classification of the RH Whitaker, which are proposed in the year of the 1969, right? That the five kingdom classification we have already aware of that the very first we are having is the monera, protista, fungi, animalia and the plant. These three kingdom we have already completed in the previous chapter. Now the we are having is the plant kingdom, we will deal with the plant kingdom, right? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कुछ मैं इन जनरल में आपको बताना चाहती हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में ही कुछ लिख दे रही हूँ। सबसे पहले प्लांट किंगडम में होता है ना हमारे पास, ये तो ऑब्वियसली नोन बात है कि प्लांट किंगडम में क्या होते हैं हमारे पास, वी आर हैविंग द मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। प्लांट किंगडम इंक्लूड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, मतलब एनसीईआरटी में दे रखा है बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन दिस शुड बी द प्री नॉलेज every student should have about that. The very first is that the plante, ठीक है, प्लांटे। अब प्लांट या प्लांटे जो भी चीज़ है इन जनरल, इसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। किस बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड करा गया है? तो पहला हम इसको रख सकते हैं क्रिप्टो गेम, क्रिप्टो गेम, एंड द सेकंड वन इज द फेंड्रो गेम, ठीक है। अच्छा, क्रिप्टो गेम मतलब क्या होता है ना कि द सेक्स ऑर्गन आर द हिडन, राइट। We will discuss in the detail later on, but very first we should have the knowledge, we should be aware of these terminologies. Sex organ hidden in this, we have the three category. The very first we are having is the thallophyta, that is algae, thallophyta. Don't be confused about the thallophyta, it is algae. Second is the bryophyta, that is bryophytes, and the third one is the pteridophyte, ठीक है, pteridophyte. Now we are having is a phanerogame. What phanerogame in tells about is that this here is the sex organ are the hidden, and here in the case of plants sex organ are the exposed. अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे phanerogames में? तो हमारे पास दो ही बचते हैं, एक हो जाएगा जिम्नोस्पर्म एंड द सेकंड वन इज द एंजियोस्पर्म, राइट। सो in general what we have need to study, or what we should be aware about that plant. The plant we are having two categories, the cryptogame and the phanerogame. What about the cryptogame? Cryptogame, the terminology means that the sex organ are the hidden, like we are having the flowers in later on chapter, we will study and we will see what this is telling about. But in general till now you should aware about this terminology cryptogame, phanerogame, because somewhere it is become important, ठीक है। These sex organ are the hidden and this is the exposed, and the two classification basically you have to remember that phanerogames में कौन कौन आते हैं, these two gymno and angiosperm included in the phanerogame, and the cryptogame we include the three, the thallophyta, bryophyta and pteridophyta, right? So चैप्टर हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है। द वेरी फर्स्ट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको मार्क करवाना चाहूँगी, वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि fungi and the member of the monera and the protista having cell wall have now been excluded from the plant, as हमने देखा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लीनियम्स वाले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उनका, they were included in the together where we are only having the two categories, that is plantae and the animalia, right?
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, सो द साइनोबैक्टीरिया विच वर रेफर्ड एज द ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट एल्गी एनीमोर बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। बिकॉज अर्लियर क्या था हमारे पास कि सिर्फ हमने सेल वॉल के बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया था प्लांट और एनिमल के, बट और जैसे जैसे डिटेल स्टडी होती गई वैसे वैसे हमने क्या किया, और भी इस डिटेल डीप में स्टडी गए, उसके फीचर्स जानते गए और चीज़ों को फिर अलग अलग सब कैटेगरी प्रिसाइजली उसको बांटते गए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, इन प्लांट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द एल्गी दैट इज थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में शुरू होते ही आता है क्या चीज़, क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है हमारे पास। ठीक है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होते हैं ना, तीन तरीके के होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ क्लासिफिकेशन सिस्टम, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, बाकी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो जस्ट इन जनरल मैं आपको बता दे रही हूँ ओवरव्यू के लिए। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है हमारे पास वो तीन तरीके का है। पहला जो हमारे पास है दैट इज द आर्टिफिशियल artificial system of the classification. The second one is that natural system of the classification. Everything is given in the NCT. I'm just writing here only to just remind you, or only to just overview, that I'm giving you just an idea what we have to study or what we need to study in the further chapter as we will proceed further accordingly. Right? The third one we have is the phylogenetic system of the classification. Phylogenetic system of the classification. ठीक है. These three systems are the given here. Now, let us look at the very first. We are having the first. We will deal with the artificial system of the classification. In general, I'm explaining you right there. The artificial system of the classification is given by the Aristotle and the Linnaeus. It might be given here somewhere in the NCRT. Let me find that. Um, Forget. I don't know where is it given or not. But in general, you have to remember that the artificial. I am writing here. The very first is the artificial system of the classification is given by the artificial ARTI artificial system given by किसने दिया था, Aristotle. Although I will provide the notes in that, you can refer with that notes. I'm writing here roughly just that artificial system of the classification is given by the Aristotle and Linnaeus. स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग देख लेना, जस्ट एरिस्टोटल एंड द लीनियस। ठीक है। इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि क्या चीज़ हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल फीचर। ऑल्दो हमारे पास क्या था, हमने पहले भी देखा था सेकंड वाले चैप्टर में बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के पहले पहले वाले चैप्टर पे ही था कि सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया था प्लांट्स और एनिमल के बीच में, और उन्होंने क्या किया, सिर्फ ही सेलेक्टेड ओनली द ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स टू डिफरेंशिएट द प्लांट एंड द एनिमल। इसमें भी सेम ही चीज़ करा गया है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, तो यूज्ड ओनली द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। राइट। तो मैं इसमें ऐसे लिख सकती हूँ कि यूज्ड ओनली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और द फंक्शंस, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है। देन वन इज अ लीनियर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो एक इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे, क्या आ जाता है इंपॉर्टेंट, कि लीनियर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज द सेक्शुअल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ना कि प्लांट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये किसी बेसिकली ये जो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन लीनियस का था ना, वो बेस ओवर था स्टेमन एंड इट्स कोहेशन। स्टेमन हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास स्टेमन स्टिग्मा, तो वो चीज़ जो था वो किसका, वो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट है। ठीक है। तो हमारे पास ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन था ना, वो हमारे पास क्या इसको बोलेंगे, इन जनरल एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है मुझे याद है, आई डोंट नो इट इज it was asked in the NEET or any somewhere question, but I have seen one question like that. Linear system of the classification is also called as a sexual system of the classification. Sexual system of the classification, right? Sexual system of the classification क्यों कहा गया इसको, because it was a base over the stamen and its cohesion. ठीक है। because it was, मैं रीजन भी यहाँ पे लिख दे रही हूँ because it was based over stamen, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स में, एंड इट्स कोहेशन, स्टेमन एंड इट्स कोहेशन। ठीक है। अच्छा,
हमारे पास अब एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में उन्होंने क्या लिख रखा है इस चीज़ में। तो ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि द सिस्टम अर्ली सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच इज द हैबिट कलर नंबर शेप ऑफ द लीफ एक्सेट्रा। ठीक है, दिस इज टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन के बारे में कहा जा रहा है। अच्छा देखो, मैं जो बता रही थी आपको वो लाइन यहाँ पे दे रखा है, गिवन है ये चीज़। ये कह रहा है कि सिंस एज दे वर द मेनली बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ द एंड्रोशियम, दैट इज एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्टेमन androecium structure that is given by the Linnaeus. Such system is called as the artificial system of the classification. Okay, although it is not given here that it has not included the name of the Aristotle, but Aristotle was also there because he used this gross morphological character. ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा कि इसको इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ द इफ यू टॉक अबाउट द Linnaeus, because it was based over the stamen and it's a cohesion stamen and that is also written here that is androecium स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द गिवन बाय द लीनियस। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। अच्छा, मेन इसका क्या चीज़ था, इन्होंने क्या किया कि दिस कंसीडर ओनली फ्यू कैरेक्टर्स एंड दैट लेड टू सेपरेशन ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है कि दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्यों ये पूछता है हमारे पास कि विच सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन लेड टू सेपरेशन ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, नाम दे देगा या फिर आर्टिफिशियल पूछ लेगा या फिर पूछ देगा सिस्टम, लीनियस का सिस्टम, एरिस्टोटल एरिस्टोटल लीनियस सिस्टम, ऐसे ऑप्शन में एमसीक्यूज में होगा जो आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इन जनरल हमको जानना था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, इतना ही था। अच्छा, और क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन गिव इक्वल वेटेज, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात क्या चीज़, ये गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड द सेक्सुअल करेक्टर विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक्सुअल करेक्टर्स आर द मोर और सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक आर द मोर इन्फ्लुएंसर as compared to vegetative, because sexual reproduction or sexual characteristic give us strength to survive in a better condition. If we'll study about the Darwin's theory, that is everything we will study in the later on, we will study the importance in the class 12th, importance of the sexual characteristic over the vegetative or the asexual, right? But in general हमें यहाँ तक बस ये चीज़ अभी याद रखना है, क्या चीज़ है कि give the equal weightage। कौन सा ऐसा सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन था विच हैज गिवन द इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, दैट वाज द आर्टिफिशियल। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन में बस ये चीज़ इन जनरल हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले ये चीज़ किसने दिया था, एरिस्टोटल एंड द लीनियस ने दे रखा था। क्या उन्होंने इस्तेमाल करा, तो यू यूज द ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब या फिर सिंपल इन जनरल हम याद रख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इंक्लूड करा गया था। अच्छा, जो लीनियस का सिस्टम क्लासिफिकेशन था एनसीईआरटी में यहाँ पे क्योंकि मेंशन कर रखा है इन्होंने दे रखा है कि गिवन बाय द लीनियस। लीनियस में कौन सा था, तो एंड्रोशियम वाला हमारे पास था। इसी को हम इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इट वाज बेस्ड ओवर द एस्ट्रोमेन एंड इट्स कोहेशन और एंड्रोशियम एंड इट्स कोहेशन। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन था हमारे पास रिलेटिव सेपरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारे पास आता है चीज़, वो आता है हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। पहला तो हमारे पास क्या था, पहला हमारे पास आर्टिफिशियल जो कि हमने पढ़ा, दूसरा हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द बेंथम एंड द हुकर। बेंथम एंड द हुकर एक बार और नाम आया था, कहाँ पे, लिविंग वर्ल्ड में आया था चैप्टर में। किस चीज़ में, हर्बेरियम में आया था। हर्बेरियम शीट वर्ड अरेंज इन द स्टैंडर्ड जो था किसके बेसिस पे, यही जो ये दो साइंटिस्ट थे बेंथम एंड द हुकर, इन्हीं के बेसिस में था हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन इन जनरल जाएगा तो नहीं दे रखा, बट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जस्ट जस्ट ओनली फॉर आपको अवेयर करने के लिए कि ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द, जस्ट मैं लिख दे रही हूँ नेचुरल सिस्टम ओनली, नेचुरल सिस्टम बाय द बेंथम एंड द हुकर, बेंथम एंड हुकर। अच्छा, उन्होंने ना जिस एक बुक में पब्लिश करी थी ये चीज़, वो बुक का नाम पूछता है और पूछा हुआ है, आपको पीवाई क्यूज में मिल जाएगा, और उस बुक का क्या नाम है, जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम। ये एक बुक है जिनमें जिसमें इन्होंने पब्लिश करी थी अपनी चीज़, ये बुक है। ठीक है, इस बुक में इन्होंने जनरल प्लांटेरम में अपना ये पब्लिश करा हुआ था ये चीज़ के बारे में। तो ये क्या कहता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन वर द बेस्ड ओवर द नेचुरल एफिनिटीज, बेस्ड ओवर द नेचुरल एफिनिटीज, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, अमंग द ऑर्गेनिज्म,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज द बेस्ड ओवर द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंक्लूड द इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। ठीक है, क्या क्या उन्होंने इंक्लूड करा हुआ, तो ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये सारी सारी चीज़ें इंक्लूड करती है। इंटरनल फीचर, एक्सटर्नल फीचर तो था ही था, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर नहीं था, इसमें क्या था, इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा नाम दे रखा है यहाँ पे, ऑब्वियस से नाम दे रखी है। सच सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द जॉर्ज बेंथम एंड द जोसेफ डॉल्टन हुकर। नाम दे रखा है तो अच्छी बात है, नाम दे रखा है, मैं कर दे रही हूँ। जॉर्ज बेंथम एंड द जोसेफ डॉल्टन हुकर, इन्होंने दे रखा था। ठीक है, इन्होंने दे रखा था ये चीज़ का। और एक बुक का नाम इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इतना ही चीज़ बचा हुआ, मतलब याद रखने को चीज़ है कि किसने दिया था और क्या क्या फीचर्स इन्होंने इंक्लूड करते, अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फीचर, अपार्ट फ्रॉम द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, इनमें क्या डिफरेंस था। तो इन्होंने इंटरनल फीचर को भी इंक्लूड करा हुआ था, और प्लस नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस्ड था। नेचुरल, ठीक है। अगला हमारे पास जो तीसरा आता है वो आता है कौन सा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन जो रहता है, अलग कलर से मार्क कर दे रही हूँ। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म दैट आर द एक्सेप्टेबल। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब दैट इज द जो एंसेस्ट्रल फीचर्स था, अगर एक ऑर्गेनिज्म में दूसरा ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे, जैसे ह्यूमंस का है तो चिंपैंजी, मंकी, गोरिल्ला एक्सेट्रा, तो कहीं ना कहीं ये सब हमारे एंसेस्टर है। तो phylogenetic system of the classification were based on the evolutionary relationship among the organisms। ठीक है, अच्छा इसमें क्या कह रहा है कि सिंस दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा, सेम टेक्सा, टेक्सा क्या होता है, कुछ एक ग्रुप, जैसे डॉग हो गया तो वो डॉग का टेक्सा, हमने बताया था चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड में ये सब सारे थे जी। ठीक है, वुड हैव द कॉमन एंसेस्टर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, मैं इसको अलग कलर से मार्क कर दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या कह रहा है कि सिंस दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा वुड हैव द कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, अगर सेम टेक्सा में बिलोंग कर रहे, सेम कैटेगरी में है, अगर डॉग है, भले ही डॉग में जर्मन शेफर्ड है या फिर वोडाफोन वाला कुत्ता या फिर जो भी अलग अलग जो भी चीज़ें हैं, तो सेम टेक्सा बट वे हैव द अलग अलग चीज़ें, बट दे कहीं ना कहीं उनके पास एक कॉमन एंसेस्टर है, कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर से वो इन्वॉल्व हुए हैं, अगर अलग इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है ना हमारे पास, वो यही वाला है। यही सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछता है ना, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से पूछता है। अदरवाइज मतलब ठीक है, अगर पूछता है तो फेलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से ही पूछता है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। अच्छा, इसको साइंटिस्ट ने दिया हुआ था, गिवन नाम दिया था, वो 3-4 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया हुआ था, जैसे कि एंगलर प्रेंटिस, तख्ताजान, ओस्वाल्ड टिपो एंड द बेसी। ये 4 साइंटिस्ट थे, इनका नाम था। काफ़ी थोड़ा ऐसे मिसाइल जैसा नाम है साइंटिस्टों का, बट ठीक है। इन्होंने क्या दे रखा था, एंगलर पेंटर, तख्ताजान, ओस्टवल टिपो एंड दी बेसी, ये 4 साइंटिस्ट थे, इन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन दे रखा था। ठीक है, क्या चीज़ यहाँ पे, ये वाला लाइन सेम टू सेम एकदम इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो लाइन मैंने मार्क किया, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो इस ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टेक्सा वुड हैव द कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि इन्होंने क्या क्या इंक्लूड करा हुआ है अदर देन दैट, तो उन्होंने इंक्लूड किया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी, इसी का पार्ट है, और कीमो टेक्सोनॉमी, जो जो बोल्ड में खुद एनसीईआरटी में बोल्ड में रख रखा है यहाँ चीज़ें। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को क्या कहते हैं ना यहाँ पे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है, ये चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, तो सबसे पहले बात हम अगर अगर यहाँ पे चीज़ कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को क्या क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को और हम क्या बोलते हैं, टैक्सीमेट्रिक, टैक्सी वाला टैक्सी और बायोमेट्रिक वाला मैट्रिक, टैक्सीमेट्रिक, या फिर क्या बोलते हैं फेनेटिक्स, फेनेटिक्स। अब इसके पीछे रीजन है कि क्यों बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को टैक्सीमेट्रिक और फेनेटिक्स, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कंप्यूटर। टैक्सीमेट्रिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, टैक्सीमेट्रिक बोलते हैं। फेनेटिक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ओवर द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। फेनेटिक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ओवर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। स्पेलिंग पे मत जाना भाइयों बहनों।
ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फेनेटिक्स कहते हैं। एंड द टैक्सीमेट्रिक वाई बिकॉज इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है। अच्छा, किसने दिया था, मैं ये नाम पूछा हुआ है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को किसने दे रखा था, तो अलग कलर से मैं लिख दे रही हूँ, ब्लैक कलर से, कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को देने वाला कौन था। माइकल एडेंसन, MICHEAL, माइकल एडेंसन साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। ठीक है, माइकल एडेंसन वाज द साइंटिस्ट हु हैव गिवन द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम और द क्लासिफिकेशन, काफ़ी सारे, एक तो चार पांच साइंटिस्टों ने इनका मिलकर नामकरण किया। नामकरण करने के बाद फर्दर और भी डिटेलिंग ऐड करते गए, तो अलग अलग साइंटिस्ट थे, जैसे कि एक माइकल एडेंसन थे। माइकल एडेंसन साहब ने क्या किया, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का कंसेप्ट दिया। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को और क्या क्या कहते हैं, टैक्सीमेट्रिक और फेनेटिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, उनके पीछे रीजन भी है, मैंने लिख दिया है रीजन वहाँ पे, ऑल द एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, ये दे रखा है ना, यूजिंग कंप्यूटर, इसलिए टैक्सीमेट्रिक। इट इज बेस्ड ओवर द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फेनेटिक्स कहते हैं। ये चीज़ वही चीज़ हमारे पास है। तो जो जो एनसीईआरटी में दे रखा है, टर्मिनोलॉजी नहीं दे रखी है, बट चीज़ें दे रखी हैं। तो अगर टर्मिनोलॉजी जान लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, फिर एक पूछ लेता है क्वेश्चन में ये चीज़ें। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। अच्छा, अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या कह रहा है कि नंबर एंड द कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा देन प्रोसेस्ड। नंबर एंड द कोड, जितने भी फीचर्स अलग अलग कैरेक्टर्स जो भी हमारे साइंटिस्ट को ऑब्जर्व हो पा रहा था, उनको नंबर दे रहे थे और कोड दे रहे थे कि हाँ, कोड 1 मतलब कोड ए, कोड बी, कोड सी, जो भी चीज़ें। तो दिस फीचर, एक पर्टिकुलर कुछ सेट ऑफ फीचर्स थे, सेट ऑफ फीचर्स को इंक्लूड कर दिया कि दिस दिस फीचर अगर वो फुलफिल कर रहा है, तो हम उसको ये नंबर दे रहे हैं और ये क्राइटेरिया, ये कोड दे देंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में नंबर एंड द कोड्स वर द गिवन टू ऑल द कैरेक्टर एंड देन डेटा वर द प्रोसेस्ड। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें क्या कह रहा है कि इन दिस वे ईच कैरेक्टर गिवन द इक्वल इंपॉर्टेंस, चाहे कोई भी फीचर हो, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात क्या चीज़ है यहाँ पे, कि हंड्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर्स वर द इंक्लूडेड। इसमें इसके पहले क्या था हमारे पास, इसके पहले जो था हमारे पास वो नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन था, जो कि नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन नेचुरल एफिनिटीज की तरफ तो बेस था, ऑल्दो इन्होंने फीचर भी, इंटरनल फीचर भी इंक्लूड कर रखा था, बट इसमें काफ़ी सारे वाइड वैरायटी था, इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं हम। अगला इसमें क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी, इसी का पार्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी होता है ना कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रोमोसोम बेस्ड ऑन इट्स लाइक नंबर, साइज, बिहेवियर, दिस इज अ साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखोगे। साइटोटैक्सोनॉमी पूछ लेता है कि साइटोटैक्सोनॉमी क्या है। साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होता, आपको इसमें याद रखना। साइटोटैक्सोनॉमी मतलब साइटोप्लाज्म, याद रखो ना, साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, इसे याद रखो। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब कि क्रोमोसोम हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। तो इट इज बेस्ड ओवर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रोमोसोम लाइक दिस नंबर, साइज एंड द बिहेवियर। ठीक है, तो साइटोलॉजी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, साइटोलॉजी का इन्फॉर्मेशन लाइक द क्रोमोसोम नंबर, उनका स्ट्रक्चर, बिहेवियर, डिटेल में पढ़ेंगे सब चीज़, बस इन जनरल आपको इस चीज़ में याद याद रखेंगे। अच्छा, कीमो टेक्सोनॉमी, कीमो कीमो केमिकल, कैम से याद रखो, कीमो टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी तो हमने पढ़ा हुआ था। तो कीमो कीम केमिकल, साइटो मतलब कि साइटोप्लाज्म वाले साइटोप्लाज्म से है। साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ होता है, क्रोमोसोम, इन जनरल हमारे पास बहुत कुछ होता है, बट हमारे पास साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम होता है, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होगे। और कीमो टेक्सोनॉमी मतलब कि केमिकल, तो यहाँ पे दे भी रखा है कि कीमो टेक्सोनॉमी लाइक द chemical constituent of the plant to resolve the confusion that are the arising because of the taxonomy these days। ठीक है, इसमें चीज़ हो जाएगा। अब इसमें और भी अगर हम डीप में जाएंगे तो ठीक है, बट एज पर द एनसीईआरटी लेवल और नीट लेवल तो यहीं तक पूछता है, बट इन डिटेल मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसमें डिटेल्स में रहेगा। और अभी फिर हमारे पास क्या था, एक बार अगर क्विक रिवीजन करना चाहें तो प्लांट किंगडम, ये चीज़, ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने ऊपर लिख रखी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। दूसरी बात यहाँ पे क्या चीज़ है कि थ्री सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन इतना था हमारे पास इस चैप्टर का। मेन जो हमारे पास जो चैप्टर शुरू होता है वो हमारे पास एल्गी, दैट इज द थैलोफाइट कह सकते हैं इसको, या फिर एल्गी से हम यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, तो फिर एल्गी से हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलो ठीक है, फिर चलो।